ड्रॉ देखना यही ड्रॉ था ड्रॉ करने में समझ में होगा तो लो एक वो नहीं लगा गे एंड यूजिंग लॉ कंबाइन की बोल किधर है किसी तो एवोगैड्रो के नीचे लॉ नीचे पूछे तो बेटा एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ और जो जो लेक्चर हुआ इसको आप थोड़ा देख लें, इसी बहाने आपका रिवीजन होता रहेगा, 5 मिनट लगेंगे। हाँ, पहला मोल डिस्टेंस का यूनिट अलग होता है, वेट की यूनिट अलग होती है, लिक्विड की यूनिट अलग होती है। डिस्टेंस की आपको पता है किलोमीटर या मीटर, वेट का ग्राम या किलोग्राम में आप बोलते हो, और लिक्विड या गैस को लीटर या मिलीलीटर में बोलते हो। केमिस्ट्री में स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसे आप मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.02 into 10 to power 23 particle and 6.02 into 10 to power 23 is also known as Avogadro number. Mole have 3 formulas. First formula is weight in gram upon molar mass. Second is number of particles upon Avogadro number, and third is volume in liter upon 22.4. Above first two formula apply in solid, liquid and gas, but third formula apply only for gas. Next, total number of atom. Here we discuss total number of atom is equal to atomicity into mole into Avogadro number. My third point is molecularity. If any substance formed by one atom, then molecularity 1. Here noble gas and alkali matter. If any substance made by 2 elements, then molecularity 2. If 3 elements any substance made, then molecularity will be 3. And in this type of case, molecularity 5. Here molecularity 4. Next, average atomic mass. This concept applies for isotopes. Here two type of problems will be possible. First is percentage given and average atomic mass will be explained by you. And next is average atomic mass is given and atomic mass of any substance asked by you. Next, average molar mass. This concept used for gaseous mixture. If in cylinder more than one type of gas present, then this type of concept is. Here two type of problem will be possible, and both are problem you know it very well. Next, J-Lucey law. Here 4 law we discuss. J-Lucey law. For any chemical reaction, number of mole equal to number of mole directly proportional to volume. Avogadro law. Here we discuss constant temperature and pressure, number of mole directly proportional to volume. Or volume in liter upon 22.4 formula is calculated by this concept. Avogadro. Law of conservation of mass. Here we discuss mass never created, not formed, but convert one form to another form. And next, law of constant and definite proportion. If any substance H2O, this formed by many types of sources, by Weber, by C, by Renning, and by any chemical reaction. But the composition of both elements. कोई दिक्कत बेटा? No sir. तो ये मैंने आपका एक लिटिल रिवीजन करवाया था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन चल रहे थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए थे, थोड़े बहुत हैं उनको भी करवा देता हूँ।
मैंने आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन तक करवा दिया था, इसी पे क्वेश्चन है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन calculate percentage of water crystallization in FeSO4 7H2। ये करवा लिया था क्या? और ग्लोबल सॉल्व। अच्छा ये हो गया था। हाँ क्वेश्चन लें, वही क्वेश्चन है आपका। सुने, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल सॉल्ट। इसकी जगह लेंगे ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला ये होता है Na2SO4 10H2O। और मैं यहाँ बता देता हूँ, जो सोडियम होता है वो होता है 1123 और सल्फर होता है 1632, ऑक्सीजन आपको पता है 816 और हाइड्रोजन आपको पता है 1H2। फॉर्मूला आपको बताइए, परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसका मोलर मास अपॉन पूरे फॉर्मूले का मोलर मास। तो आप चाहो कैसे लिख सकते थे, 10H2O का मोलर मास अपॉन Na2SO4 10H2O का मोलर मास 200। कितना है आंसर? इसका आंसर कितना होगा? तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में टाइम मिल सकते हो, टाइम ला सकते हो। डिवाइड की प्रैक्टिस करना सीखो आप। जितना भी बड़ा डिवाइड हो आपके 5 सेकंड या 10 सेकंड से आने वाला नहीं।
अगर नहीं आता तो आप मुझे बताओ, मैं आपको सिखाऊं। दो डिजिट किया करो बस, पॉइंट के तरफ एक ही डिजिट किया करो, आंसर आ जाता है। देखो Sir, 55.9. नहीं, हाँ बेटा, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका आंसर है लगभग 56%। आपका 55.9 एक तरह का 56, बिल्कुल सही। तुम्हारा कितना है? देख, तूने ये किया होगा, ये था इसका मोलर मास अपॉन फॉर्मूले का मोलर मास। तो सबसे पहले तो ये निकाल, इसका होता है 18 और ये 10 है। 16 को 18, ये 10 से यहाँ 180 आया अपॉन Na2SO4 का 23, 32, 64 तो 180। हाँ, ये है ना 322. तो 23 कितना आएगा बेटा इसका? 322. 322. 328 into 100 22. 22, sir. हो गया। अब अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत है, देख लो भैया डिवाइड कैसे करना है। जब आप कंफ्यूज, अब मैं कैसे करता था, देखो सबकी अलग अलग तरीके डिवाइड करने की, बचपन से आप डिवाइड करते हो, आप कैसे करते हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कटिंग में दिक्कत आएगी, इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, अब इसको 2 से डिवाइड कर सकता था मैं ऐसे करता। ये 18,000 हो गया क्या ऊपर वाला, और ये 322 हो गया क्या? हाँ. ये लो 4 डिजिट आएंगे तो 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15, लगभग 5 बार जाएगा। तो ये मैंने 5 बार लिखा, तो 5 का इसमें किया तो 5 टू 10, 5 टू 10 और 8 11 और 15 और 1 16। मैंने इसको माइनस किया 0, 10 में से 1 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 दिया 190 हो गया। अब मैंने 1 0 और दिया, तो जब ये 5 बार गया था तो 1610 आया था, 6 बार जाएगा तो लगभग 6 बार जाएगा, तो 56 पॉइंट कुछ कुछ। बात समझ में आई? हाँ हो सर, रहा है समझा. 10 से 15 सेकंड नहीं हो रहा है। यही ऑप्शन तोड़ने का तरीका होता है। अब जैसे मैं इसको करता फिर इसको करता, फिर भी मुझे डिवाइड करना पड़ता, तो मैंने सीधे कर दिया। और याद रखना, जितना बड़ा डिवाइड करोगे आंसर उतना एक्यूरेट आता है। बात समझ में आई नहीं है? समझा सर. तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लें बस, इसी टाइप के हैं, और इसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को खत्म करूं और अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी तरह शुरू करते हैं नया। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। जब किसी को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड शुगर हो जाती है, तो डॉक्टर उसे इंसुलिन के इंजेक्शन देता है, सुना है? हाँ. तो डॉक्टर लोग कैसे इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वेट के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से, वो किसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो। तो एक क्वेश्चन लिखें, इंसुलिन कंटेंट 0.0016% ऑफ सल्फर। इंसुलिन की कोई डोज है, उसमें सल्फर का परसेंटेज ये है। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। कोई इंसुलिन का इंजेक्शन है जिसमें सल्फर का परसेंटेज इतना है और मोलर मास इंसुलिन का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू जिसका परसेंटेज होता है उसका मोलर मास ऊपर होता है, तो मोलर मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ इंसुलिन। हाँ. समझा? हाँ सर. आपको पता है जिसका परसेंटेज निकालते हो वो ऊपर जाता है और जिसमें है मतलब टोटल वाले का नीचे होता है।
और आपको पता है सल्फर 32 होता है क्या, और परसेंटेज आपको हाँ। कितनी दी है, ये दी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 × 10⁻⁴ हाँ। बराबर सल्फर होता है 32 और इसका हमें मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इंसुलिन का। हाँ। नहीं समझ रहा है? समझा सर। तो ये आया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन बराबर, हाँ लगभग 20,000 100 की होता है मेरा भाई, परसेंटेज का है ना, तो ये 2 × 10⁻⁶ समझ गए हो बेटा, परसेंटेज में 100 की तो होता है यार। हाँ। इतना खतरनाक होता है इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट 2 करोड़ के आसपास। और आपने देखा वो डीएनए स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका बढ़ता नहीं है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपको सैकड़ा, हाँ ठीक है। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, क्या सर? किसका सर? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हाँ सर, सुना है। हाँ, ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज 14 के आसपास होनी चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन के लिए। अगर 14 से नीचे है तो वो वीक कहलाता है, उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, ज्यादा नहीं होती, वो एक्सेप्शन केस में आ जाता है, फिर उसका कोई डिस्टर्बेंस है। आयरन की परसेंटेज, किसी में जब ज्यादा आयरन की परसेंटेज आएगी हीमोग्लोबिन बढ़ भी जाता है। हाँ तो एक और क्वेश्चन लिख लें लास्ट में, बस इसके बाद खत्म करें। हीमोग्लोबिन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको मिक्स किया है मूल कॉन्सेप्ट से। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन। If molar mass of hemoglobin is 89600, 89600, then calculates number of Fe atom या number of iron atom, आयरन का सिंबल ये होता है Fe, number of iron atom present per molecule of hemoglobin. Present Per molecules of hemoglobin. बेटा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें, मुझे इसमें करेक्शन लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। इसमें ऐसे लिखा है, मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन इफ वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, मोलर मास की जगह है वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89,600 और बाकी सब वही है। इसमें मोलर मास नहीं दिया, वेट दिया है। और याद रखना आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 56 होता है। तो देखो मैं इसको कर देता फास्ट,
देखो बेटा ध्यान देखो, आपसे शायद ना हो, है सिंपल, लेकिन आएगा 5 मिनट आप खर्च करोगे फिर मैं खर्च करूंगा। देखो ऐसे परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर, अब वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू 100। ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। देखो मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने कहा था अगर यहाँ वेट है तो यहाँ वेट लोगे, अगर यहाँ मोलर मास है तो यहाँ भी मोलर मास लोगे। तो उसने यहाँ वेट दिया है हीमोग्लोबिन का, तो मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ भी वेट लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई है नहीं? हाँ सर समझा। अब आपको ये बात पता है कि जो आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज कितनी की है? 0.25 0.25 -2 हाँ वेट ऑफ आयरन अपॉन हीमोग्लोबिन का वेट आपको दिया है 89,600 इंटू हाँ 100। तो आपकी हाँ 2 से 2 जीरो के लिए कैंसिल हो गए, तो हाँ वेट ऑफ आयरन आया आपका 25 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 896। हाँ और अगर ये 10 की पावर -2 हटा दो तो इसको आप 8.96 लिख सकते हो। हाँ अब देखो मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ हमेशा। 8 रुपए 96 पैसे, 8 रुपए 96 पैसे, एक तरह की 9 रुपए है क्या? 9 हाँ और आपको हाँ पता है 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आता है क्या? हाँ हाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका वेट जो आयरन का हो गया लगभग 225 ग्राम हो गया। हाँ समझा नहीं? समझा सर। यहाँ से आप आयरन की मोल निकाल सकते हो क्या? अरे भैया हाँ मोल बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर ये मास हाँ 225 है और आयरन का 56 होता है, मैंने आपको बताया। तो लगभग यहाँ 4 हाँ मोल आएंगे क्या? अरे 224 हाँ होता है तो हाँ सर ये जो पूछ रहा था कि आपके इतने हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने मोल, समझा नहीं समझा? समझा सर। अरे तो आप यहाँ से मोल पता चल गया। अब मोल बराबर नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ हाँ एटम निकालेंगे तो 4 हो गया और एवोगैड्रो नंबर है 4 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। समझा नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर समझ गया। हाँ नोट कर लेंगे। क्लियर? तो जो मतलब ये डॉक्टर होते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट उनके लिए बड़े काम के होते हैं, लेकिन ये वाले डॉक्टर नहीं जो मतलब सीधे साधे होंगे, एमएसएमडी होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो इन सब चीजों पे अप्लाई करते हैं कि हमें कितनी डोज देनी है, कितना वेट देना है, आयरन के कितने एटम अंदर जाने चाहिए। ये एम्स एम्स वाले लोग होते हैं मोल कॉन्सेप्ट का पहले से यूज करते हैं। हो गया सर। आगे का सबका हो हो जाए गया सर। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप पूछ चुके हो। जिसका परसेंटेज आपको दिया है उसी का वेट ऊपर रहेगा और टोटल जो वेट है वो नीचे रहेगा। बस आप इतना याद रखना, किसी में भी परसेंटेज बता सकते। अब कर दूं? हाँ सर। तो मेरे तरफ से ये परसेंटेज वाला टॉपिक खत्म। जितनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकती थी, जितनी मेरे पकड़ में आई, मैंने आपको करवा दी। अब नए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, जैसे अगर कोई आपसे जनरली पूछे, देखो कोई आपसे पूछे कि अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये पानी है गिलास, एक गिलास पानी है जिसका वेट है 18 ग्राम, ठीक है? 18 ग्राम पानी आपने पिया। अब इसमें आपने हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज पी लिया और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज पी लिया। तो सबसे पहले तो आप मोल निकालो इसके कितने हैं। तो मोल बराबर वेट इन ग्राम, पानी का मोलर मास 18 होता है क्या? एक हाँ मोल हो गया क्या?
हाँ आपके पास एक मोल था, आपने यहाँ लिख दिया, या फिर आप, अरे और सिंपल हो रहा है, देखो ये भी नहीं करना है। एक और सिंपल, हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पानी का रेट दिया है 18 और हाँ। इसमें हाइड्रोजन का रेट कितना है, 2 है क्या? ये होता है हाइड्रोजन 2 दो। हाइड्रोजन इंटू है। 2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो पानी का तो होता है 18, इसमें इसके में एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, समझ? तो यहाँ से कितना आया, और 9 एकम 9 9 एकम 9 0.11 सही है। तो हमने हाइड्रोजन 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन का इतना परसेंट पी लिया, 11.11, और इसका देखो आप, 2 8 का 16, 2 9 का 18, सही है। तो ये 800 अपॉन 9 हो गया क्या? हाँ सर हाँ और आपको इसका टोटल 100 आएगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल भी नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, इसका टोटल तो 100 आएगा। अब ये 11.11 है, तो ये 88 पॉइंट कुछ भी है क्या? हाँ हाँ उसको सॉल्व करोगे तभी 88 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपने हाइड्रोजन का 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन का इतना परसेंट पी लिया, ऑक्सीजन इतने परसेंट। किसी पेशेंट को, अब ऑक्सीजन तो हम सांस से ही लेते हैं, और जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या वैसी कुछ प्रॉब्लम है तो हम जैसे पानी आने चलाते हैं, तो डॉक्टर इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इसकी बॉडी के अंदर हमने हाइड्रोजन उतना डाल दिया, ऑक्सीजन उतना। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझा सर। जैसे डॉक्टर में, जैसे कोई आपके यहाँ सीरियस पेशेंट है, आप डॉक्टर को तो एलिमेंट डालनी है, कैल्शियम पोटेशियम जो भी काम की एलिमेंट है। अब सपोज करो डॉक्टर को ये लगा कि इसके अंदर इतना परसेंट ऑक्सीजन डालना है, तो हमें केवल पानी का रेट पता है, यहाँ से परसेंटेज निकला कि नहीं निकला, कितनी परसेंट हाइड्रोजन चला, कितनी परसेंट, तो दिक्कत नो सर कितने काम का है ये, बोल कौन सा? किसी भी कोई भी डोज दे रहे हैं तुरंत पता चल जाता है कि ये इतने परसेंट ही चला गया। अब एक नया टॉपिक है बेटा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आप पढ़ ही चुके हो। और एक नया वर्ड हो जाता है एंड तो नया वर्ड नहीं है फिलहाल, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो, जैसे पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, शक्कर का ये तो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहीं से आप मॉलिक्यूलर किसी का वेट निकाल लेते तो उसे आप मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, लेकिन नया क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सर वो एक बार स्पेल करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेडिंग लिखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ देखें, अभी आप क्या अभी सर? मैं आपको मतलब बता देता हूँ, फिर आपको थ्योरी लिखवा दूंगा। तो अभी आपके पास लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब। हाँ देखो बेटा, जैसे वाटर, नाम सुना है वाटर का? हाँ सर अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है क्या, Mn। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये होता है। हाँ हाँ सर। चलो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। दूसरा है आपका ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है क्या? हाँ C12 C6H12O6 हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। नो सर अब नो सर। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला की।
एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? तो गौर से देखो, वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कितने हाँ। एटम? हाँ 2 ऑक्सीजन के 1 इसका रेशियो 2:1, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही होगा। आगे समझ में आएगा। अब ग्लूकोज वाले केस को देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, किस किस के हाँ। मिलकर बना? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं इसमें? 6 6 12 12 6। सही है? हाँ ये हाँ छह सर। सर ये पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ 1 2 हाँ इसमें कार्बन कितना है? 8 सी। अब एक यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, एक का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो, आंसर वही आता है। एक को लिखो चाहे ना लिखो, मैं भी लिख देता हूँ C1। हाइड्रोजन कितने हैं?2 H। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 अब एक को लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो है CH2O। मिनिमम सबसे कम वाला सिंपलेक्स रेशियो है। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है एटम का सबसे कम वाला सिंपल रेशियो। अब इसमें तो कम हो ही नहीं रहा था ना। हाँ हाँ सर। रिपीट करूंगा, एटम की जो लोवेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो है, एटम की सबसे कम वैल्यू का सिंपलेस्ट रेशियो, वही किस नाम से जाना जाता है? एम्पिरिकल। एम्पेरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसमें 2 कट रहे हैं, 3 नहीं कट रहा, नहीं काटेंगे। समझ में आया? लिख रहे हैं ऐसे? हाँ ऐसे सर। नोट कर, फिर मैं आपको कायदे से लिखवाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन करवा दूं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये है, जो आपका ये C2H4 है, इसका मुझे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 H2 एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2। बिल्कुल, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। कैसे आया? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो, मैं रिपीट कर। और सर। नो हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो। सर C12 H22 और 11 ही आएगा मॉलिक्यूलर और बिल्कुल, एम्पेरिकल। हाँ C12H22O11 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो, अगर आपको समझ में आए कैसे आ रहा है तो आप मुझे बताते जाओ, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसलिए मैं भी सीधे सीधे चलता जा रहा हूँ। अच्छा। समझ आया? हो गए 3 आइटम और एक से नहीं हो रहा था। इसका बताओ जरा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। वही आएगा सेम। अच्छा, इसका बताओ जरा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। 1 1 सर CH। CH ही आएगा। बिल्कुल, ये होगा बेटा C6H6। हाँ और ये और ये CH। क्या है? CH। CH इसका बताओ जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला।
सर C6H6 और empirical formula CH। अच्छा, हाँ सर। मेरे हिसाब से तो बेटा ऐसा हो रहा था कि इसका आ रहा था C6H8 आ रहा होगा। एक बार और देख लो। हाँ, सॉरी। तो फिर दो यहाँ है, 1 3 4 5 6 8 हाइड्रोजन नहीं है इसमें। CH2 एम्पिरिकल फॉर्मूला 3H4 बिल्कुल C3H4। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझा सर। हाँ सर। देखो एक चीज और आएगी। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख गए, एम्पिरिकल फॉर्मूला सीख गए। अब एक नया वर्ड आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग बाद में लिखवाऊंगा, अभी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि वहां से क्वेश्चन ही आने हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बाद में कायदे से लिखवा दूंगा क्वेश्चन करो। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है वो भी देख ले। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जैसे आप यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है। कितने कार्बन है इसमें? 6। हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है? 8। 8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 80 हो गया क्या? हाँ। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले मास की बात आ रही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का 12 होता है, 12 × 3 यहाँ 36 हो गया। हाँ। हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 4, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 40 हो गया क्या? 40। तो देखें आप आज अभी के लेक्चर में आप कितनी चीजें सीख गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सीख गए, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सीख गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का मतलब क्या है सीख गए, एम्पिरिकल फॉर्मूले मास का मतलब क्या है सीख गए। इन चार में कोई डाउट? नो सर। नो मैं सर। हर बार जोड़ी लगवा देता हूँ, क्वेश्चन आप बनाना सीख चुके हो और एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस। हाँ सर। तो है ये लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला EF। एम्पिरिकल फॉर्मूला EF आपको पता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो है। अब इसी को मुझे लिखवाना है बस। मिनिमम सिंपल रेशियो ही एम्पिरिकल फॉर्मूला है एटम का। तो इसमें लिखें फॉर्मूला विच डिनोटेड फॉर्मूला विथ फॉर्मूला विच डिनोटेड फॉर्मूला विच डिनोटेड मिनिमम सिंपलेस्ट रेशियो of minimum simplest ratio of all the element in one molecule of the compound in one molecule of the compound is known as, here known as empirical formula.
कुछ एग्जांपल है जो आप कर चुके हो फिलहाल। H2O तो आप ऐसे करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ से आपका आया H2O, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता ही होगा। दूसरा एग्जांपल आप ग्लूकोज का कर लो, C6H12O6, इसके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन है 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 6, तो ये आया 121, तो ये आएगा CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला। हो गया सर। हो गया सर। अगली हेडिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कोई कई बार देखा ये ऑप्शन आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? एलिमेंट का सिंपल रेशियो बताता है क्या? हाँ। हाँ। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ एटम बताता है क्या? हाँ। हाँ। तो लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में फॉर्मूला which denoted exact number of atom, formula which denoted exact number of atom of all element present in Present. one molecule of the compound. Present in. Present in one molecule of the compound is known as molecular formula. देखो आपकी पर्सनल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, अब ये तो मैंने आपको किताबी लैंग्वेज लिखवाई है, पर्सनल लैंग्वेज आपकी क्या है? जैसे ये आपका ग्लूकोज है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि इसकी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताता है। अरे C6H12O6 इसके पास इतने एटम थे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है क्या? और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? कार्बन हाइड्रोजन एटम का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सिंपल रेशियो। बात समझ में आई नहीं आई? समझा हाँ सर। सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है C6H12O6, तो आपको पता है कि इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 हैं। यहाँ इससे क्या पता चलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल एटम बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट समझा है? हाँ। हाँ सर। समझा सर। अगली हेडिंग रिलेशन। क्या सर? अगली रिलेशन इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and empirical formula. Relation in between molecular formula and empirical formula. तो देखें इस फॉर्मूला लिखिएगा n फैक्टर बराबर n बराबर m सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और इसको बॉक्स में बंद कर देना। चाहो तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और इसका फुल फॉर्म है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
क्या है ये सब, ये आपको मैं बता चुका हूँ। हो गया सर। आप चाहो तो हो इसको गया ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर एन फैक्टर इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चेक करो। हाँ हाँ सर। हाँ अब देखो, हो गया। अब मैं इसको प्रूव करके देता हूँ हाँ आपको। सर। हाँ सर। कहाँ समझ में आया बताते जाना। जैसे है ये आपका ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H12O6 जो आपको पता है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। CH2O। हाँ हाँ इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो 180 आएगा, हाँ 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 और इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो 12 12 को 14 14 और 16 28। हाँ हाँ। ठीक है, आपको पता है एन फैक्टर बराबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। हाँ हाँ। जब आप इसको 28 से डिवाइड करोगे तो 5 8 से 40, 5 दूनी 10 4 14 नहीं 16 12 28, ये बेटा 30 आएगा। देखो कार्बन का 12, इसका 2, इसका 16, तो ये 30 आएगा ना। हाँ सर। तो एन फैक्टर बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये 6 आया क्या। हाँ अब गौर से देखो, अगर बाई चांस आपको ये नहीं पता, इसको हाँ भूल जाओ। आपको सपोज करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता कितना है, आपको केवल ये पता है। अब उसने क्या किया, आपसे क्वेश्चन बनाया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब उसने आपसे क्वेश्चन बनाया कि ग्लूकोज का, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है क्या। हाँ सर। हाँ तो सर। देखो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसका CH2 है। 6 का गुणा करो उसमें, तो कार्बन में 6 का गुणा होगा तो C6 हो गया। हाँ बोल सर। क्लियर सर। और यहाँ जो है 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो H12 हो गया, हाँ और यहाँ एक ऑक्सीजन है 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो O6 हो गया क्या। हाँ देखो हमें एन फैक्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला पता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप आ गया नहीं आ गया। सर एक बार रिपीट है करो। सर। तो बेटा आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ये पता है। हाँ सर। एन फैक्टर कितना है आपका 6, हाँ सर। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। हाँ अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है क्या इसमें, हाँ समझा सर। तो ये C6H12 को समझिए क्या। हाँ समझा सर। हाँ इसको फॉर्मूले रखने से अपने आप हाँ आंसर सर निकल समझा जाएगा। सर। हाँ सर समझा। हो गया सर। एक क्वेश्चन करके देख लें इस पर छोटा सा, समझ में सबको आ रहा है ना। क्वेश्चन ले लें, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन empirical formula of acetylene and benzene is CH.
empirical formula of acetylene and benzene is CH. Its molecular formula mass MFM. Its molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78 respectively. 86 and 26 फिर से सुने 78 फिर से सुनना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ acetylene and benzene is 26 and 78 हो गया हाँ सर then calculate molecular formula of acetylene and benzene. सिंपल है, आप अपना दिमाग लगाओ, आपसे हो सकता है। एसिटाइलिन का है C2H6 C2H2 और बेंजीन का है C6H6। बिल्कुल सही। सर एसिटिलीन का आया C2H2 और बेंजीन का C6H6। बिल्कुल सही। हाँ देखो, जिनका नहीं हुआ वो देख लें, बिल्कुल आराम से करते हैं अपन। एसिटाइलिन और बेंजीन है, तो मैंने एक तरफ एसिटाइलिन लिख दिया, एक तरफ बेंजीन लिख दिया। अब उसने क्वेश्चन में बोला है एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH है और बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल आएगा। इसका 12 हाँ। 13, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला मास 13। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में 26 दिया है, इसका 78 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ। और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, आपको पता है सबसे पहले आप n फैक्टर निकालो। तो n फैक्टर बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है? 26, तो ये 13। n फैक्टर 2 आ गया क्या? हाँ। और आपको फार्मूला पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्या? हाँ सर। और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, n की वैल्यू 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH है क्या? हाँ C2H2। हाँ सर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसमें करना था। सबसे पहले n फैक्टर निकालो, तो n फैक्टर बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इसका 78 है, इसका 13 है, यहां से 6 आएगा। हाँ। और आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। और आपका n फैक्टर इसमें 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला CH है, यहां से C6H6 आ गया। हाँ।
एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें पूरा जितना दिमाग में कचरा होगा पूरा साफ हो जाएगा, और आपने अगर इसे इनको किया खतरनाक टाइप का मतलब डिवीजन नहीं हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा ये रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। ये आपका बेटा होमवर्क है, इसको आपको घर से करना है। ओके सर। क्वेश्चन है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n स्मॉल n फैक्टर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सर रिपीट। Determine the value of n and empirical formula. हाँ, आपको दो वैल्यू बतानी है, ऐसी टेबल बना लेना आप, और इसमें n की वैल्यू बतानी है और यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। इसका वो बताया, पहला है आपका H2O2, दूसरा है आपका B2H6, तीसरा है आपका Fe2SO4, फोर्थ है आपका N2O4, फिफ्थ है आपका C4H10। ये चार नोट कर लो, जगह कम पड़ गई फिर दोबारा करता। हाँ, बोरॉन का मैं यहाँ आपको हिंदी भी दे देता। बोरॉन होता है 510, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हो। Fe का होता है 56, सल्फर का होता है 32, और नाइट्रोजन का होता है 14। ये चारों का आप टेबल से देख लेगा, जिसका आपको ना समझ में आए एटॉमिक मास। और है सो बोर्ड नहीं दिख रहा। 5 लिख कर लिए। बेटा ये 5 नोट कर लिए क्वेश्चन। हाँ सर। और जो है सर बोर्ड ये दिख रहा सर। 5 रफ कर देगा। हाँ, 6 देखें आप। CH3 COOH 22O11 Al2O3, और एल्यूमिनियम का होता है आपका 27। और अगला है आपका 9 नंबर CA3PO4 का होल थ्राइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, CA3PO4 का होल ट्वाइस। और इसमें कैल्शियम का होता है 40 और फास्फोरस का होता है 31। और लास्ट है आपका, ये तो आपने किया ही है, C6H12O6। हो गया सर। तो आप देखें, ये आपको 10 क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो गिवन है, ये आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है और एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है? हाँ सर। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप जैसे इन 10 की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आपको मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि गलती होने की कोई चांस। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में, इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ।